morning students. In today's video we are going to discuss the next topic, which is inverse Laplace transform by using the partial fraction method. In the previous video we already discussed the inverse Laplace transform by using convolution theorem as well as the method of as well as using some properties and some formulas. Okay, now all of you know that the partial fraction method. Now what is the partial fraction method? If we have given that some term, and if we have to simplify it by using the separation, at that time we use the method of partial fraction. Okay, so there are 4 types of partial fraction method. If the roots are repeated, if the roots are distinct, if the roots are quadratic, and if the roots are repeated and quadratic. Okay, now we will discuss one by one. Now first type is actually partial fraction method totally depends upon the nature of the denominator or the nature of the roots of the equation which is present in the denominator. Okay, suppose first of all we discuss the first type, that is if the roots are repeated, if the roots are distinct. Means suppose our given term is 1 upon s into s plus 1. Okay, here if the roots are linear and non-repeated, we suppose s and s plus 1. Here s and s plus 1 both are linear as well as non-repeated. Now linear means that power of the variable is 1. Okay, so here 1 upon s into s plus 1. Here s and s plus 1 are the roots and both are non-repeated as well as linear. So the RHS is a upon first root plus b upon second root. Okay, that is the first type of partial fraction method. First type is roots are distinct and linear. Okay, then second type is s into suppose s plus 1 whole square. Second type is if the roots are linear as well as repeated. अगर हमारा रूट लीनियर है बट रिपीटेड है, एट दैट टाइम व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? इट बिकम a upon first root s plus. Now here second root s plus 1 whole square is repeated, so here we write down b upon s plus 1 plus c upon s plus 1 whole square, because if here roots are linear as well as repeated. Okay, now third type of partial fraction method is if the roots are quadratic and non-repeated. Quadratic means suppose our roots are 1 upon a x plus b x square s square plus b s plus c. Okay, into second root is suppose s square plus ds plus e. Okay, suppose the roots are quadratic as well as non-repeated. At that time, what is the right hand side? It become as plus b. Now, if the roots are quadratic, अगर quadratic रहते हैं तो क्या रहेगा? Numerator as plus b into s square plus bs plus c. And for the second root, what is the second term? Next constant is c. So cs plus b upon next root is s square plus bs plus e. Okay, that is for the roots are quadratic as well as non-repeated. Okay, and suppose the roots are quadratic and repeated, then we have to just apply the combination of second and third. Means suppose our roots are 1 upon s square. Suppose fourth number, suppose our roots are quadratic as well as repeated, means suppose the roots are 1 upon s square plus bs plus c whole square. Then at that time what is the right hand side? It becomes as plus b upon s square plus bs plus c plus, here roots are repeated as well as quadratic. Then what is the next step? The cs plus d divided by s square plus bs plus c whole square, which is a combination of number second
second type and third type. Okay student, in this way we can apply the method of partial fraction, and method of partial fraction is totally depends upon the denominator or depends upon the roots of that denominator. Okay, after that we will discuss the example. Okay student, is it clear? Okay, then we see the example. So students, see the example. If f of s is equal to 1 upon s into s plus 1, s plus 2, s plus 3, find L inverse of f of s. Okay, here we have to obtain the inverse of the given function. We have to obtain the Laplace inverse of the given function. Okay, so first of all, अब देखो ये जो given example है, यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज करना है. अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है, अगर आपको फैक्टर ऑलरेडी दिए हैं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अगर फैक्टर के फॉर्म में नहीं है तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करो, देन इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर है s इंटू एस प्लस 1, एस प्लस 2, एस प्लस 3. अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो 4 टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड थे उसमें से कौन सा टाइप अप्लीकेबल है. फर्स्ट टाइप है रूट्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, सेकंड है लीनियर एज वेल एज रिपीटेड, थर्ड है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड. अब हमारे फैक्टर क्या है यहाँ पे, यस एस प्लस 1, एस प्लस 2, एस प्लस 3, चारों अलग अलग है. इसका मतलब क्या है, नॉन रिपीटेड है. उसके बाद देखना है आपको s का पावर, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ s. पावर ऑफ s इज 1 हियर, इट मींस दैट 1. देखो s में 1 है, सेकंड टर्म में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है. मींस हर एक टर्म में पावर ऑफ s 1 है. मींस हियर the roots are linear as well as non-repeated. So which type is applicable here? So we use here type number 1 of method of partial fraction. Okay student, we use first type, separate it, and we obtain the inverse Laplace transform. Okay, so first of all, we write down f of s. We have given that f of s is equal to 1 upon s into s plus 1, s plus 2, s plus 3. Okay, denoted as equation number 1. First we separate it using the method of partial fraction. So we consider the right hand side of equation 1 because we have to use the method of partial fraction. So it is s into s plus 1, s plus 2, s plus 3 is equal to. अब देखो हमारे रूट्स क्या है, नॉन रिपीटेड एज वेल एज लीनियर है. तो हमारे राइट साइड में क्या मिलेगी, a अपॉन कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट रूट. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट रूट, दैट इज s. उसके बाद सेकंड कांस्टेंट b अपॉन नेक्स्ट रूट क्या है, s प्लस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 2 प्लस d अपॉन s प्लस 3. Okay, then we have to find the values of a, b, c and d. That is equation number 2. Now we have to obtain the value of a now. अब देखो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पे आपके पास दो टाइप प्रोसीजर है. एक तो आप दोनों साइड के एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप दूसरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी मेथड क्या है, देखो सपोज हमें a की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, a का डिनोमिनेटर क्या है, s. सो दैट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. s इज इक्वल टू 0 के लिए हमें a की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में s रिमूव करना है और a छोड़ के बाकी सब डिनोमिनेटर लेना है. s प्लस 1, s प्लस 2, s प्लस 3 एंड s इज इक्वल टू 0. ओके, आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a छोड़ के बाकी कांस्टेंट के डिनोमिनेटर लिखेंगे, और a की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम डिनोमिनेटर ऑफ दैट a इज इक्वल टू 0 रखेंगे. मीन्स एट s इज इक्वल टू 0 वी गेट द वैल्यू ऑफ a. सो इट बिकम 1, 2, 3 मीन्स इट बिकम 1/6. सो वी गेट a is 1/6. Okay, then similarly we obtain the value of b, c, d. So the value of b,
b इज इक्वल टू 1 अपॉन b के लिए क्या आएगा s इंटू s प्लस 2 s प्लस 3 एट डिनोमिनेटर ऑफ b क्या है s प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स s इज इक्वल टू -1. सो s इज इक्वल टू -1 के लिए b की वैल्यू क्या आएगी -1 1 अपॉन -1 प्लस 2 दैट इज +1 -1 प्लस 3 ये क्या आएगा 3 -1 2. सो व्हाट इज b इज -1/2. ओके देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू के लिए सेम मेथड है 1 अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 3 एंड c की वैल्यू s की कौन सी वैल्यू के लिए मिलेगी s इज इक्वल टू -2 के लिए. सो इट बिकम 1 अपॉन -2 इंटू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इज -1 -2 plus 3 is plus 1. So what is c? c is 1/2. Okay, similarly we obtain d is 1 upon s plus 1 s plus 2 and add s is equal to क्या आएगा -3 s is equal to -3. So it becomes 1 upon -3 plus 1 -2 -3 plus 2 is -1. So it becomes -1/6 means -1/6. We get the values of a, b, c, d. Now we put the value of a, b, c, d in equation number 2. Then equation 1 becomes. So from equation 1 and we put the values of a, b, c, d in equation 2 and use equation 1. So we get, so what we get f of s is equal to f of s is equal to क्या मिलेगा हमें a की वैल्यू क्या है हमारी what is a is 1/6 अपॉन s 1/6 अपॉन s प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2 अपॉन क्या है s प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन s प्लस 2 और d की वैल्यू -1/6 अपॉन s प्लस 3. Okay, we get f of s, but we have to obtain the inverse of f of s. So what we have to do, just taking real inverse on both sides. Now apply real inverse on both sides. So we get real inverse of f of s is equal to 1/6 तो constant है. Real inverse of 1 upon s plus -1/2 constant -1/2 real inverse of 1 upon s plus 1. Then third term is plus 1/2 real inverse of 1 upon s plus 2 and last is -1/6 real inverse of 1 upon s plus 3. Okay, now use the formulas and obtain the inverse Laplace transform. So real inverse of f of s, here we have to obtain the inverse of f of s. So we write down the inverse of f of s or f of t, both are the same thing. So is equal to 1/6 into what is inverse of 1 upon s? Inverse of 1 upon s is 1 because Laplace of 1 is 1 upon s. So inverse of 1 upon s is 1. Okay, -1/2. Now inverse of 1 upon s plus 1. देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 upon s plus 1 किसका है e raised to power plus 1 है मतलब -1 into t means e raised to -t plus नेक्स्ट टर्म 1/2 यहाँ पे s plus 2 है क्या आएगा e raised to power -2t minus 1/6 into यहाँ पे क्या है +3 means e raised to power -3t. Okay, so what is the inverse Laplace transform? 1/s into 1 means 1/6
माइनस ई रेस टू माइनस 3/2 प्लस ई रेस टू माइनस 2t/2 minus e raised to minus 3t/6. Okay, student. In this way, we get the inverse Laplace transform of the given function by using the method of partial fraction. Okay. I hope आपको मेथड समझ में आई होंगी और एग्जाम्पल भी. After that, we will discuss the another example. So students, see the next example. Here, if f of s is s plus 29 upon s plus 4 into s square plus 9, find f of t. Okay, find f of t, or we say that real inverse of f of s, because f of t is the Laplace inverse of f of s. Okay, now first of all we write down f of s. F of s is equal to s plus 29 upon s plus 4 into s square plus 9. ओके, अगर आपको एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो सबसे पहले आपको रूट्स देखना है. हाँ, और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के टोटल डिग्री कितनी है. यहाँ पे 2 + 1 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है. मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो ही मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी. एंड इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहती है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज नॉट अप्लीकेबल. इन दैट केस वी हैव टू यूज फर्स्ट मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन एंड देन अप्लाई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपकी कब यूज होगी? इफ एंड ओनली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 2 + 1 3 है. मींस 1 इज लेस देन 3 है. सो हियर दैट मेथड इज अप्लीकेबल. अगर इसकी डिग्री ग्रेटर अगर रहती है तो ये मेथड डायरेक्टली यूज नहीं होगी. इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन एंड देन वी यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमें यूज करना है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, सो आपको सबसे पहले फैक्टर देखना है. एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है. सो वी गेट इक्वेशन 1 s plus 29 upon s plus 4 into s square plus 9. So first factor linear है, so we get a upon s plus 4. सेकंड फैक्टर हमारा क्वाड्रेटिक है तो हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा? bs plus c upon s square plus 9. ओके, हाँ अब देखो यहाँ पे हमें लीनियर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन नंबर 2. सो a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? न्यूमरेटर क्या है? s plus 29 डिवाइडेड बाय a का s plus 4 है तो हमारी वैल्यू मिलेगी हमें s इज इक्वल टू -4 के लिए डिनोमिनेटर s square plus 9. सो वी गेट -4 plus 29 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय -4 square is 16. 16 plus 9 that is again 25. So what is a? A is 1. Okay. So we have to obtain B and C. लेकिन अब B and C फाइंड आउट करने के लिए देखो क्वाड्रेटिक है. हाँ, क्वाड्रेटिक है तो हम इस टाइप में इस टाइप ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है. सो अगर हमारा फैक्टर क्वाड्रेटिक रहते हैं तो दैट टाइम दैट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. सो वी हैव टू टेक फर्स्ट एलसीएम. इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना है दोनों साइड का. एलसीएम क्या आएगा हमारा? s प्लस लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज s plus 4 s plus s square plus 9 as it is. What is the right hand side? Right hand side is a into s square plus 9 plus bs plus c into क्या मिलेगा? s plus 4 divided by s plus 4 s square plus 29 s square plus 9. Okay,
हमने ए मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड जो कांस्टेंट है हमारे वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, उसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, इसीलिए ए मेथड एप्लीकेबल नहीं है. सो वी यूज दिस सेकंड नेक्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इट गेट कैंसल. सो वी गेट s plus 29 इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 4. ये क्या बनेगा, देखो बी एस स्क्वायर प्लस 4bs प्लस सी एस प्लस 4c. ओके, अब देखो हमें बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है. तो बी के लिए देखो बी का मल्टीपल क्या है, एस स्क्वायर. सो वी इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर की टर्म अब्सेंट है. राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे क्या आएगा ए और यहाँ पे क्या आएगा बी, ए प्लस बी. सो वी गेट ए प्लस बी इक्वल टू 0, मीन्स व्हाट वी गेट ए इक्वल टू माइनस बी. और ऑलरेडी हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, ए क्या है 1. सो ए इक्वल टू माइनस बी और बी इक्वल टू माइनस ए. सो व्हाट इज बी, बी क्या मिलेगा हमें, ए की वैल्यू क्या है -1 है प्लस 1, तो बी इज -1. ओके, सो उसके बाद अब हमें निकालना है सी की वैल्यू, सेकंड कांस्टेंट. सी का कोएफिशिएंट देखो क्या है, यस. सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एस, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एस. ओके, बी एस के कोएफिशिएंट इक्वेट करो. लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है 1, राइट साइड में क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ पे एस स्क्वायर, हाँ एस का मल्टीपल 4b प्लस यहाँ पे क्या आएगा सी, 4b प्लस सी इक्वल टू 1. बी की वैल्यू हमारे पास है, तो सी क्या मिलेगा हमें, सी इज इक्वल टू 1 माइनस 4b, 1 माइनस 4b. सो सी इज इक्वल टू 1 माइनस b इज -1, 4 into -1, so it become 1 plus 4 5. So C is 5. Okay, we get the values of A, B, C. Now we put the values of A, B, C in equation 2 and then we write down equation 1 and 2. So we get, so using equation 1, 2 as well as the values of A, B, C. So use equation 1, 2 and constant A, B, C. We get, what we get? We get f of s is equal to, we get f of s is equal to क्या मिलेगा, देखो a की वैल्यू क्या है 1 upon s plus 4 plus what is b, b is -1 into s plus c क्या है 5 divided by s square plus 9. Okay, now it can be also written as 1 upon s plus 4 as it is. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 into s minus s upon denominator, so minus s upon s square plus 9. यहाँ पे जैसे हम सेपरेट करें इसको, plus 5 upon s square plus 9, just separating. Okay, now we get f of s. Now we have to obtain inverse, so real inverse of f of s is equal to real inverse of 1 upon s plus 4 minus real inverse of s upon s square plus 9 plus 5 constant है, real inverse of 1 upon s square plus 9. Okay, so what is the inverse? 1 upon s plus 4 का inverse क्या आएगा, e raised to power -40 माइनस इसका इनवर्स क्या आएगा, s upon s square plus 9. s square plus 9 can be written as s square plus 3 square. So what is the inverse Laplace transform, which is s है न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा cos minus cos of 3t. Okay,
प्लस 5 यहाँ पे देखो 1/s² प्लस 9 है, मीन्स 1/s² प्लस 3²। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो हमारा इनवर्स क्या मिलेगा हमें, इसका sin 3t/3। ओके, सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज e⁻4t minus cos of 3t plus 5 into sin 3t divided by 3. Okay student, that is inverse of f of s, or we say that it is f of t, because f of t will be inverse Laplace transform of f of s. Okay, in this way we get the solution using the method of partial fraction. Okay students, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, दोनों भी एग्जाम्पल। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत इजी है, अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई नहीं होता है तो हम उस जगह पे इस मेथड का यूज करेंगे। ओके, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट आपको मेथड यूज करनी है और सेपरेट करना है, और उसके बाद मेथड अप्लाई करके उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, सो वन एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है। सो स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल है आपको होमवर्क के लिए है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ f of s is s+2 s into s-1 होल स्क्वायर, फाइंड L इनवर्स ऑफ f of s। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है s, और यहाँ पे क्या s-1 होल स्क्वायर। अब ये जो पहला फैक्टर है कैसे है, नॉन रिपीटेड है। ओके, इसके लिए क्या मैंने मिलेगा हमें a/s, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर क्या है, रिपीटेड है, लेकिन पावर ऑफ s क्या है, 1 है। सो सेकंड फैक्टर इज लीनियर बट रिपीटेड। सो व्हाट इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगी, फर्स्ट के लिए a/s, सेकंड के लिए b/s-1, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा c/s-1 होल स्क्वायर। ओके, और फिर उसके बाद आपको मेथड अप्लाई करनी है और कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एंड लास्टली वी हैव टू अप्लाई द इनवर्स ऑन बोथ साइड एंड ऑब्टेन द लाप्लास इनवर्स। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या करना है, हमें दिया है f of s गिवन है s+1/s² प्लस 2s प्लस 2 होल स्क्वायर, अगेन फाइंड इनवर्स। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, s² प्लस 2s प्लस 2, मतलब क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है उसके लिए हमारा न्यूमरेटर क्या रहता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक होने के बावजूद स्क्वायर है, मतलब रिपीटेड है, मीन्स फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक एज वेल एज रिपीटेड। तो आपको इसके लिए कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो हमें उसके कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ते हैं, उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आपको सेम मेथड अप्लाई, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में मेथड यूज किया उस टाइप की मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे, और फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, एंड लास्टली वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, एंड देन वी राइट डाउन द f of s, and after that we have to apply inverse on both side, and then we get the Laplace inverse of the given function. Okay student, दोनों एग्जाम्पल जो है जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल लिए उस बेसिस पे दोनों एग्जाम्पल है, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, that is the inverse Laplace transform by using the method of partial fraction. Okay, in the next video we will discuss the next part. So thank you very much.